Good morning, children. Welcome to the class. This is the second chapter of your geography book, Globe, Latitude and Longitude. So let's start this chapter. In this chapter, we will talk about globe. This is your first topic. So I hope all of you know what is globe. If you don't know about it, look at this picture. This is the globe, right? So what is a globe? Globe is a miniature form of Earth. As all of you know that the size of our Earth is very big. To understand the Earth, we are making a model of it, right? So simply this is a model of Earth. Now, there are certain characteristics of this globe. Look at this globe carefully. If you will find in this globe that there is a bulge in middle, right? थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ भाग निकला हुआ है मिडिल में, ये वाले पार्ट में, right? While at the same time, the north and south part of it, that means north pole और south pole जो है थोड़ा सा flattened है, a little bit, right? Apart from this, this earth, that means this globe is tilted, थोड़ा सा झुका हुआ है, yes or no, right? So what are the characteristics of globe? Basically, these globes are very you can say differ in size. You can find small size globe, इससे बड़ा भी आपको मिल जाएगा, राइट और नॉट, ठीक है? तो इस पे आप देखो ये सारे पिक्चर्स भी आप देख रहे हो. दीज आर द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इंडिया है यहाँ पर, यू कैन लुक एट हियर. दिस इज अफ्रीका यहाँ पर. तो ग्लोब पर हमारे वर्ल्ड की डिफरेंट कंटिनेंट्स को भी शो किया हुआ होता है. इस पे जो ओशियंस हैं वो भी होते हैं, राइट और नॉट, ठीक है? So till now, you understood that globe is a true model of Earth. It is slightly flattened at north and south pole, while at the same time, bulge in middle. Okay. Now the question is कि why this globe is tilted? थोड़ा सा tilt किया हुआ है, क्यों? ऐसा क्यों है? क्या सच में हमारा अर्थ इस तरह से tilted है? Yes, our Earth is tilted, right? So कैसे? Look at here. देखो. Look at this image, right? This earth is moving from, that means it's rotating from west to east. So all of you know that on the paper we are representing this side as a west, this side as a east, north, south. So अगर मैं यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो आपको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ एंड इधर साउथ होता है. यस और नो? So this earth is moving from west to east. Okay, now why I am telling this earth is tilted? Tilted क्यों है? देखो, अगर ये सीधा घूम रहा होता तो जिस लाइन पे ये घूम रहा होता वो वाला लाइन ये होता, लेकिन अभी जो अर्थ घूम रही है वो कौन से लाइन पे घूम रही है? इस वाले लाइन पे घूम रही है, ठीक है? तो जो बिल्कुल सीधी वाली लाइन है और जो रियल में अभी जिस लाइन पे, इमेजिनरी लाइन पे घूम रही है, ठीक है, इनके बीच 23.5 डिग्री का डिफरेंस है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द अर्थ इज टिल्टेड. नाउ व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन क्या है? टेल मी. ये वाला लाइन क्या है? इज इट रियल इन अर्थ? क्या इस तरह का कोई लाइन है? क्या कि इस तरह का कोई निडल है हमारे अर्थ में? नो. हमने एक इमेजिनरी लाइन खींचा है, ठीक है, जिसपे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एन इमेजिनरी लाइन एंड नॉट अ रियल लाइन, राइट? अगर आप अर्थ को देखोगे तो इस तरह की कोई लाइंस नहीं होती है, ठीक है? ये हमने इसको बनाया है कि हम जानना चाहते हैं कि अर्थ कहां पर से घूम रहा है, राइट? ओके, नाउ लुक एट हियर. दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ अर्थ. ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये एक्सिस ऑफ द अर्थ इज पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल से ये गुजरती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ऑल ऑफ you know that our earth is rotating, and look at here, this earth is also rotating, but in the second one you will find there are some lines. आपको कुछ lines दिखेंगे इस तरह के. कुछ lines vertical है, कुछ lines horizontal है, right? Can you see it?
Yes. Okay. So what is these lines? These are imaginary lines drawn on earth. So again remember, these are imaginary line. There is no any real lines like this on earth. हमने इसको ड्रॉ किया है, राइट? ग्लोब पर हमने ड्रॉ किया है. क्यों ड्रॉ किया है? वी विल फाइंड इट लेटर, राइट? जस्ट नो दैट हमने अर्थ पर इस तरह के लाइंस ड्रॉ किए हैं, राइट? ओके, तो ये देख लो, एक और पिक्चर है, क्लियरली समझ में आएगा. तो ये जो लाइंस हैं, दोज लाइंस विच इज हॉरिजॉन्टल, राइट? इस तरह के जो लाइंस हैं, लुक एट हियर, ये वाला, ऑल द लाइंस विच आर हॉरिजॉन्टल, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड. इसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड बोला जाता है. एंड ऑल द वर्टिकल लाइंस, लुक एट हियर, दिस रेड कलर लाइन, all the vertical lines are called longitude. So we will explore more about it. Before that you need to understand that the middle line, ठीक है, ये वाला लाइन, ये ब्लैक कलर वाला, इस लाइन को हम इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है? Why? This is in between, that means ये बिल्कुल बीच में है. अगर हम इस लाइन से अर्थ को कट करेंगे तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा. नॉर्थ पार्ट में इधर वाला पार्ट नॉर्थ कहलाएगा, इधर वाला पार्ट साउथ कहलाएगा, राइट? उसी तरह ये जो लाइन आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, इट इज डिवाइडिंग अर्थ इन टू हेमिस्फीयर. दैट इज, इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ईस्ट. ये वाला पार्ट ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट. इधर वाला पार्ट नॉर्थ हो गया और इधर वाला पार्ट साउथ, राइट? सो रिमेंबर दिस, दिस इज द अर्थ्स हेमिस्फीयर. सो अर्थ को जो है हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. अगर हम अर्थ को बीच से कट करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एट द सेम टाइम दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? व्हाइल एट द सेम टाइम इफ वी कट द अर्थ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, देन अर्थ के 2 पार्ट होंगे. द फर्स्ट वन विच कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस वाले साइड को, and this side is called as western hemisphere, right? So earth can be divided into 4 parts: northern, southern, eastern and western hemisphere, right? Okay, so look at here, देखो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है. तो if I ask you to find out that India is in which hemisphere, right? तो किस हेमिस्फीयर में? देखो, India is in ईस्टर्न हेमिस्फीयर as well as in northern hemisphere. yes or no? है ना? देखो, इसको हम बीच से हमने कट किया है तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इधर वाला पार्ट क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया लाइज इन ईस्टर्न as well as in northern hemisphere. while at the same time if I ask you where is America, अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में? it is in western hemisphere and northern hemisphere, right? So like that you can identify. Let's move to the topic पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. जस्ट अभी हमने बात किया कि जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, राइट? ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. इसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं. व्हाई वी कॉल इट एज अ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स? बिकॉज ऑल द लाइंस यू कैन सी दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. कभी भी आगे जाके वो कहीं पर भी कट नहीं कर रही. कैन यू सी? कट करने का मतलब, अगर ये लाइन इस तरह से होता, आगे जाके ऐसे ऐसे मैच कर गया होता, इट इज नॉट अ पैरेलल लाइन. व्हाई? बिकॉज बोथ द लाइन इज इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर. बट हियर यू कैन सी बोथ द लाइंस आर पैरेलल, राइट? कहीं भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. सो व्हाट इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? इट इज अ पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स. ठीक है, देखो ये हमारा इक्वेटर है. मैंने बताया आपको बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं? हम इक्वेटर बोलते हैं. एंड इसके बाद ऊपर में जितनी भी सर्कल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, राइट? तो ये कहां से कहां तक जाती है? इक्वेटर से पोल तक जाती है. लुक एट हियर, इन द अपर साइड, इन द लोअर साइड, राइट? नाउ लुक एट दिस इक्वेटर. दिस इक्वेटर इज कॉल्ड एज 0 डिग्री. इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री. देन like that we go to the pole, it is 90 degree. That means 90 degree north. That means from equator
1 1 2 3 4 5 6 7 like that 90 lines are there. ठीक है, how many latitudes are there? 90. From 0 degree to north pole 90 degree, right? 1 2 3 4 5 like that till 90 degree north. Same in the south side also, 1 2 3 4 5 6 7 like that 90 degree to south pole. That means इस side भी 90 lines हैं, right? Okay, so how many latitudes are there in our earth? 90 this side, 90 this side. 90 plus 90, how much? 180 plus 1, that is 0 degree equator. That means total how many latitudes are there? 181, right? Okay, so all the latitudes which is in the north side, it is called as north latitude, and all the latitude in the south side is called as south latitude. So always remember, whenever you write 60 degree, right, you have to mention the direction. That means north or south, right? So if I am saying 90 degree here, so I will write 90 degree south. If we write here 90 degree, then we have to write north. Okay, good. Then coming to the next one, what are the important parallels of latitudes? What are the important lines on our earth? देखो, some of the lines are very important on our earth. For example, the first one at 0 degree equator, we already talked about it, right? Why? Because it divides earth in two parts, that is northern and southern part. Second important line is Tropic of Cancer. What is it? Tropic of Cancer. At how much degree? 23.5 degree north. 23.5 degree north पर एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? देन अगला जो लाइन है वो कौन सा है? आर्कटिक सर्कल. ये कितने डिग्री पे है? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब हम साउथ पार्ट में आते हैं. अगेन 23 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? एंड 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ, that means important parallels of latitude. So how many are they? 1 equator, Tropic of Cancer 2, Arctic Circle 3, 4 Tropic of Capricorn and Antarctic Circle 5. So these are the important latitudes of Earth. Why it is important? We will discuss about it in coming lecture, right? Okay. Now we will discuss the heat zones of the Earth. Our next topic is heat zones of the Earth. What is the meaning of heat? All of you know that this is temperature. So look at here. If you look at this Earth, what do you think? Which area of the Earth will experience high heat? Obviously this red part. Why? Because this red part is facing direct sunlight. Yes or no? Hai? Then whenever we moves towards the pole, right, whether it is north pole or it is south pole, जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? जो गर्मी है, हीट है, वो कम होती है. Why? Because the sunlight have to travel a long way to reach there. Yes or no? देखो सनलाइट की लंबाई कहां पर ज्यादा है? इस साइड या फिर यहाँ पर? यहाँ पर बहुत छोटा लंबाई है, राइट और नॉट? एटमॉस्फेयर से बहुत कम गुजरना पड़ता है. व्हाइल एट द सेम टाइम इस साइड में क्या होता है? सन को एटमॉस्फेयर से काफी दूर तक गुजरना पड़ता है. दैट्स व्हाई इधर वाले पार्ट में थोड़ी ठंडी होती है. जैसे जैसे हम पोल के पास जाते हैं वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा होता जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म होता है. ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. आपने देखा होगा कि इन द मॉर्निंग टाइम यू विल सी जो हमारा सनलाइट है वो थोड़ा तिरछा आता है. ये सुनो, इस तरह से स्लांटिंग आता है. दैट्स व्हाई मॉर्निंग में आपको उतनी गर्मी नहीं लगती है ना? सुबह जो है, सुबह का जो सन है वो आपको काफी ज्यादा प्यारा लगता है.
ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नून you are experiencing more heat. Why? Because sun is on your overhead. sun क्या है, आपके बिल्कुल सर के ऊपर होता है, राइट? लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, ये रे जो है इसकी स्लांटिंग आती है. यस और नो? ओके, गुड. Let me explain you with one more example. Right? Look at this picture. You will find here that in one picture, this is torch, right? All of you know torch. अगर हम टॉर्च को सीधी रखते हैं किसी एक कार्डबोर्ड पे तो क्या होगा, जो हमारा सरफेस एरिया है जिस पर लाइट पड़ रहा है दैट विल बी स्मॉल, राइट? और ये काफी ज्यादा ब्राइटर होगा, ये काफी ज्यादा, यू कैन से काफी ज्यादा लाइट होगा यहाँ पर, है ना, अगर हम इस तरह से टॉर्च को रखें. व्हाइल एट द सेम टाइम अगर हम टॉर्च को थोड़ा सा स्लांटिंग कर दें, थोड़ा सा रे को तिरछा कर दें, तो ये जो एरिया कवर करेगा दैट विल बी बिगर, राइट? लेकिन ये वाला एरिया पे उतना लाइट नहीं होगा जितना कि यहाँ पर, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम हीट के टर्म में देखें तो अगर ये सनलाइट है, अगर ये ब्रॉडर एरिया कवर कर रहा है, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पर जो गर्मी है वो थोड़ा कम हो जाएगी. लेकिन अगर हीट है, सनलाइट है, दैट इज ओनली फॉलिंग ऑन अ नैरो एरिया, राइट? बहुत छोटे एरिया पे वो सनलाइट गिर रहा है, तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा. Look at here one more example. This is candle, right? Listen, don't do it at home. अगर आप करते भी हो तो पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है इस एक्टिविटी को. एक कैंडल जलाना, राइट, एंड पुट योर हैंड नियर टू द कैंडल, राइट? ठीक है, उसको टच नहीं करना है, थोड़ा पास ले जाके देखना है. क्या लगता है आपको कौन सा पार्ट ज्यादा गर्म होगा? सन यहाँ से निकल रही है कैंडल की लाइट, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक विच पार्ट विल बी मोर हीटेड? एक्सपीरियंस इट. कौन सा पार्ट ज्यादा गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाला पार्ट है, राइट, दिस विल बी हीटेड. ये आपको हाथ को थोड़ा स्ट्रेट रखना है, राइट? व्हाइल एट द सेम टाइम ये वाला पार्ट जो है थोड़ा कम हीट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल की जो लाइट है वो, ये जो रे है ये स्लांटिंग पहुंच रहा है, राइट? व्हाइल एट द सेम टाइम यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट, राइट? सो if you want to try it, try in the supervision of parents, right? Okay, that's enough for today. Thank you. Have a nice day. We will discuss more in next class.